Very good morning to all of you. In the last session, we saw your practical number 6, if I'm not wrong, right? We did circular cube, yes or no? Yes. Okay. So today we are going to start with linked list. Okay. See, in your lectures also we are going through the linked list. Fine. And here also we are going to go with the linked list part. So it is going to be, much easier for you to understand whatever we are looking in the lecture. Okay. And we are quite keeping up the time. Okay. So do not worry. We are at the right pace. Okay. So everybody, open up your consoles. And this time you need to keep this program saved somewhere. Okay, every time we were completing a program in one single lab, but this time it is not going to happen because it is quite a long practical. Okay, so we are dividing it into parts. So part 1 we'll see today, part 2 we'll see in the next coming lab. Okay. Fine. See, this is your experiment. Experiment number 7. Visible on your screens? Experiment 7 visible on your screens or not? Yes or no? Okay. See, experiment number 7 is what? A menu driven program which is going to implement the following operations on singly linked list. So see, they are telling you have to implement the following operations. So in order to implement these following operations, first of all you need to have a singly linked list. Okay, so in the flow of your program you will first create a singly linked list. Okay, as with as many nodes as user wants. All right, then afterwards, after you have created the singly linked list, then you are going and giving the choice to the user that out of the given operations, which operation would you like to do. Okay, so if we can just discuss how we are going to approach this particular program. Okay, the flow of your practical 7. First, you are going to create the node structure. Okay, how can you create the node structure? What do you need to write in the coding? Struct node. Exactly, correct with the struct node, then inside the data members, right? The member, or you can say the member variables of that struct node, that is the data part and the pointer part. See, here we are talking about singly linked list, so only one pointer. Okay. So first of all, you are going to create the node structure. Then second, you are going to create the singly linked list. Okay, by taking inputs from the user. Now, how many nodes you are going to include? The number of nodes, as many as your user wants.
Okay, so in order to do that, you need to put the code to create the SLL inside a while loop. Okay, so while some choice value, or say while choice is true, okay, till that number of times you are going to implement the node insertion to create the SLL. Okay, so it will be as many times as user wants. Fine. Once you are done with this, the user says that now he or she doesn't want to continue, then you are going to give the options for operations. Again, this, how many times you are going to do this? As many times as user likes. Okay, so for that case, again what we are going to do, a while loop. Okay, inside that while loop, some of your printf statements to notify your user that what are the options. Okay, and your switch case. Okay, fine. Understood the flow, how you are going to target this particular practical number 7, where you have to implement some set of operations on singly linked list. So first you are going to create the node structure, then you are going and creating the singly linked list, and then you are going to operate these 6 operations. Okay, understood till here? Yes or no? Understood? Okay. So now open up your consoles and create a node structure. See, the program for creating a singly linked list we have already discussed in your theory. Okay, and it was discussed twice. So you guys should be having that program with you as reference also. Or if you have just understood that program, not written it anywhere, then also you should be able to implement it. At least that is what I'm expecting. Created the node structure, everyone?
Okay, this is your note structure. So you have to write in the comment here. Create node structure. Okay. Now we are talking about singly linked list. Singly linked list has head pointer. So go and define and declare a head pointer. Once done, inside your main, start creating your singly linked list. I'm giving you time to write the code to create the singly linked list. It is not that we have not discussed this code, this creating the singly linked list code I have shown you and discussed twice in the lecture. So now you should be able to at least write half of it, not full, then at least half of it you should be able to write. So start writing. I'm giving you some time to write the code for creating the singly linked list, okay? I'm not asking you about the operations, I'm telling you to create a singly linked list. What I am writing is the last part of the this particular code. That means code for after you have written code for creating a singly linked list, you are going to write these two lines. So do not take it as these two lines are the starting of inside your while. Okay, these two lines are end.
If you are stuck somewhere, don't just sit and look at the screen, okay? Just unmute yourself and tell me. I'll come and help you. But do not sit in the lab. This is your lab. You have to do the practical coding. And do not hesitate to ask for help also.
Done? Anyone? Tushar, Yes, ma'am. present your screen. Wait a minute. I need to log in. Girish, Girish, are you there or not? Okay, not there. Devansh, present your screen. Okay, go to your SLL create function. Ma'am, I was creating, not yet completed. Okay, stop presenting and create it, but little bit quick. Okay. Okay, ma'am. Tushar, can you present your screen now? Okay. Okay, you are also doing it. Okay, fine. Do it. Stop presenting. Do it. Guys, but be a little quick. Okay. We have to complete 3 functions today out of 6. So a little bit quick.
Vidhi, Manav, Girish. Done? Anyone? Vidhi, show your screen. Yes, ma'am. Visible. You are getting some error. Yes, here in head. Declare that inside void main. Remove it from there and write it inside void main. Right. Done. Okay. Vidhi, what you have done inside while loop is just creating the node, giving the data part, and giving the next part. You're not creating a single linked list yet. Okay, I forgot to add variables. I'll do that. No, you have to create a chain of nodes. Yeah, that only. Structure variables. Okay, then start creating that chain of nodes. If you all can remember, this is not just for Vidhi, for all of you. If you remember, we were discussing that if else loop. If head equal 0, then head equal to temp equal to new node. That loop, if else loop. So that you have to implement it here. Okay. Okay, Vidhi, you can stop presenting. Just out of curiosity, do you guys have any exam today apart from I mean, the ongoing program? Do you have any session today? Yes or no? Students, this question is for all of you. Do you have any extra test or session which you need to prepare, anything like that for today?
ओके, तो स्टूडेंट्स क्यों कम है बैच ए में? पच्चीस में से सिर्फ आई गेस आधे जन ही है। हुआ किसी से? Okay, students, I'll help you out now. Just have a look if you are facing any issues. I'll just share my screen. Just give me a minute.
Okay. See, I don't know what is the reason for your friends not joining the lab sessions here. Okay, because we are going to continue with next lab also, the same program. So if they are missing out here, I don't know how they are going to cope up in the next lab. Again, the next lab, same scenario, I suppose I can expect. With only few students joining, and then ultimately I have to tell Madhu madam about the same, which I don't want to do it. But okay, fine. Your choice. Everyone can see my UI? I mean the ID visible? Yes. Yes. Okay. See, I guess most of you have created the new node. That means allocation of the memory. Okay. So if you have not written the comments, kindly write allocation of memory to the node. Okay. So what you are going to do? New node equal to, see, new node I have declared here. Okay. I have declared already my new node here. So that new node equal to struct node star malloc size of struct node. Okay. So you just allocated the memory. Now you have to take the data. So take the data for the node. So printf enter the data for the node. Slash n. Scanf %d, store it into your node data part. Okay. So new node, arrow operator and data. Okay. So stored. Now if you do with new node next, it's okay. If you don't go with new node next, also it's okay. But it is a good practice to, assign new node next value equal to 0. Otherwise, it will create a problem if you cannot handle those errors then. Okay, now what you have to do? Now, first of all, you have to check that the node which you created, okay, above is your first node in your singly linked list. If that is the case, then my head will be pointing at 0. So I'm going to compare my value for head. If head is equal 0, that means the node is going to be the very first one in my singly linked list. So what I need to do, I need to point my head and one more my temporary variable to new node. Okay. Else if it is not, if my head is not pointing at null, again you have to take one temporary variable. So you can just take one temp variable here where you have declared your head pointer temp. Alright. Now else if it is not, then what you are going to do? Temp of next is equal to new node. Okay. And you are going to move your temp so that now it points to new node. So what exactly is happening? Suppose you have a head pointer. Imagine, okay, this is your head which is pointing to a node having data value and a pointer value.
Okay, this is your node. This is your node. This pointer value, suppose this node is the first one. So obviously you are going to just simply point this head and temp to new node. Okay, to this new node. But the scenario is what? You are creating one more node here. Okay, and now you need to insert this node. Let me just tell it as D1. Now you are going for D2. Okay, now you want to insert this node in your singly linked list. This is your singly linked list. Okay, now to add this node, you are going to first check head is equal to 0. No, head is not equal to 0 because it is already pointing to some here, some memory address here, right? So what it is going to do, it is going to go to else. Now along with head, we are also pointing our temporary pointer so that we can create a link between these two. Okay, so with that help, with the help of the temporary pointer, temp of next, this part, we are updating with new node memory address. Okay, so what we are doing, we are creating the link. Okay, and now this temp is going to point here. I can write it for you. Temp is now here. Okay, at this position. Now again, if you go, now again, you are going for this while. You would like to add more nodes? Yes. So again, it is going to go up. Okay, inside this while. Again, one new node will be created. Let's say that new node which got created is D3 with pointer value as 0. Okay. Then see here also the pointer value we are giving it to be 0. Okay, this value also 0. Now what? See, if head equal to 0, no, head is not equal to 0. So come to the else. Temp of next. What is temp of next currently? 0. You have to update it with some memory address. Okay. Here suppose I am writing memory address as 100. 100 is memory address of this one. Okay. Suppose the memory address allocated to D3 node was 200. Okay, so you are going to update that 0 to 200. So you are creating this link, right? And temp you are moving forward so that in next iteration, if you want to go and add the node, then with the help of this temp you can add the node here. And you see the property of my singly linked list is also getting verified here. Last node is having null value or 0 value in your singly linked list. Head is pointing to my first node. Got it? This is how it is happening. I'm keeping this for you. Kindly start or just verify. If you have already done, then verify. If somewhere the code was not running for you, then just check where was the mistake. This is the logic. हेलो मैम. Yes, Ruby. मैम एक्चुअली क्लास सब लोग आई गेस अटेंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि सबके ना स्ट्रक्चर करवाया था ना हमारे लैब में, तो वो सिंपल स्ट्रक्चर करवाया था, पॉइंटर से करवाया ही नहीं है. लाइक थोड़ा थोड़ा ही करवाया था, वो भी ऑनलाइन क्लास में, तो सभी का नहीं हुआ है, तो सबको इश्यू आ रहा है समझने में. एक मिनट वापस बोलो.
एक्चुअली जो स्ट्रक्चर करवाया था ना हमें सेकेंड सेमेस्टर में, तब हमें सिर्फ मुझे याद है वहाँ तक स्ट्रक्चर वेरिएबल जो सिंपल हम क्रिएट करते हैं वो ही हुआ था। पॉइंटर वाला तो मुझे नहीं याद है कि ऐसा कुछ करवाया भी है या फिर प्रैक्टिकल लैब में भी है। तो मैंने खुद ने कोड तंत्र से सीखा है ये सारा कुछ। तो आई गेस सबको इधर प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा, इनफैक्ट मुझे अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है ये समझने में, अरे तो फिर बोल क्योंकि क्यों, मैलोक कैलोक ये तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो कोई भी? मैम आई सपोज सब शायद दूसरे लोगों का हो गया है, शायद मेरा ही बाकी है। पर जब मैंने अपने फ्रेंड से बात की तो उन्होंने बोला कि हाँ मेरा भी छूटा हुआ है। क्योंकि देखो, आई एम नॉट गेटिंग ऑफेंडेड बाय एनीथिंग, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ऐसा लग रहा है कि प्रोफेसर कहीं डांट देंगे या फिर कुछ ऊपर नीचे बोल देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, एटलीस्ट नॉट इन माय केस, ओके। आई एम कंसर्न दैट व्हाई यू गाइज आर मिसिंग आउट व्हाट इज ऑलरेडी गोइंग ऑन। चलो, जो मिस किया है पीछे का वो तो ठीक है, लेकिन जो अभी चल रहा है, जिसका बेस आगे का है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन वो तो सिर्फ इतना सा है, सिर्फ इतना सा। बाकी का जो ये लॉजिक है वो तो पूरा नया ही है ना। ये जो पूरा हाँ लॉजिक है डायलॉग वगैरह का, वो तो पूरा नया है। और ऐसा भी नहीं है कि ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। प्रैक्टिकल 2 में तो हमने वो इन डेप्थ देखा है कि मैलोक का पूरा एक ब्लॉक आता है, कैलोक मल्टीपल मेमोरी ब्लॉक्स असाइन करता है, तो वो तो मैंने इन डेप्थ पढ़ाया है। हाँ मैम, फिर भी, आपने करवाया, क्लियर हुआ वो सारी चीज, लेकिन हाँ तो फिर स्ट्रक्चर ठीक वाला। है ना, तो लेकिन आप लोग बंक करना तो सॉल्यूशन नहीं है ना विधि। Like, हाँ I'm not मैम, saying you guys anything. Neither I'm saying those who are missing out. लेकिन ये चीज लाइक पिछले 2 लैब से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, स्पेशली इन योर बैच। इसीलिए मैंने आज पूछा कि कोई टेस्ट है क्या आज, कि जिसकी वजह से शायद शायद हो सकता है कि टेस्ट है तो नहीं हुआ है प्रिपेयर, तो उसकी वजह से लैब मिस कर दी हो। तो इसीलिए मैंने नहीं पूछा ऐसा तो कि नहीं ये, है, अगर ये दिक्कत है तो बाकी के लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि शायद उन्हें ऐसा होगा कि सबका हो गया ऐसी, मतलब बहुत लोगों ने पहले से पढ़ लिया है तो शायद उन लोगों को आता हो, किसी का ही छूटा हुआ। विधि, इसीलिए तो मैं सबको बोलती हूँ कि डू नॉट हेजिटेट टू टॉक आउट। बात नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा? मुझे थोड़ी ना वहां पे आके पता चलने वाला है कि आप लोगों को आ रहा है या नहीं। इसीलिए तो मैं बोलती हूँ कि इंटरेक्ट करते रहो, नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है ना, मैं हूँ यहाँ पे समझाने के लिए। 2 बार समझाऊंगी, 3 बार समझाऊंगी, 4 बार समझाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लैब बंक करना तो आई डोंट थिंक इसका कोई सॉल्यूशन है, क्योंकि ये चीज क्या हो रही है पता है आपको? इस वजह से लाइंस कितनी है स्ट्रक्ट मोड की? 4, ठीक है। इस 4 लाइन के कोड की वजह से आप पूरा का पूरा कितने लाइन का मिस कर रहे हो देख लो। ऑलमोस्ट 73 लाइंस का पूरा ये कोड है, और ये तो अभी पार्ट 1 है, ओके। दिस कोड इज गोइंग टू बी अराउंड 115 लाइंस। तो पूरा ऐसे कॉन्सेप्ट और लॉजिक क्यों मिस कर रहे हो? मेरा बस ये यही कहना है। अच्छा ठीक है, स्ट्रक्ट नोड नहीं पता चल रहा तो एक बार पूछ लो ना, बता दूंगी क्या है स्ट्रक्ट नोड, एटलीस्ट जितना इस प्रोग्राम के काम आएगा उतना बता दूंगी। बाकी का तुम लोग सेल्फ स्टडी लेके स्ट्रक्ट नोड पढ़ सकते हो, ई बुक ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है। फिर भी नहीं आप लोग ज्वाइन करते हो, आई मीन योर फ्रेंड्स एंड ऑल फ्रॉम द सेम बैच, तो फिर लॉस उनका बढ़ता जा रहा है। पहले का तो उनको लॉस है ही है, लेकिन अब भी जो करवा रही हूँ वो भी लॉस है। मैम अभी बर्डन बढ़ेगा ना, इसलिए और मतलब नहीं पढ़ पाएंगे वो लोग, क्योंकि समझ और कम आएगा उन लोगों को। अरे तो पूछते क्यों नहीं हो? मेरा क्वेश्चन ये है।
क्योंकि देखो मुझे तो वी आर राइट नाउ इन ऑनलाइन सेशंस, करेक्ट? तो मुझे तो वहां पे अगर फेस टू फेस होते तो शायद आपके फेशियल एक्सप्रेशन से मुझे पता चल जाता कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है? लेकिन अभी तो ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में तो आप लोगों को ही बताना पड़ेगा ना कि समझ आया कि नहीं आया। इसलिए तो मैं बार बार पूछती रहती हूँ, इज इट क्लियर और नॉट? नहीं क्लियर है तो तुषार पूछ लेता है, तो तुषार को मैंने कभी मना नहीं किया एक्सप्लेन करने के लिए। वो जितनी बार बोलता है उतनी बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देख लो तुम मैम लोग। हाँ तुषार। मैम टू बी तुषार ऑनेस्ट, to be honest, ma'am, हाँ data structure should be done in a live session, not in online session. It was wrong decision, I guess. डेटा स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, इतना इजीली नहीं होता है, क्योंकि एक एक लिंक लिस्ट का हजारों काइंड ऑफ इन डेप्थ एप्लीकेशन होता है, उसको भी प्रैक्टिस करना चाहिए। इतना सा डेटा स्ट्रक्चर से तो कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन अभी तो क्या है कि अभी आप लोग फेस टू फेस तो आ नहीं रहे हो, ठीक है? तो क्योंकि मैम कॉलेज अभी पूरी नेक्स्ट टाइम बोला था, इस टाइम कुछ और सब्जेक्ट होगा, मगर डेटा स्ट्रक्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट, इट शुड बी इन अ लाइव सेशन। और मैम मेरे हिसाब से 6 महीना में कंप्लीट भी नहीं होता, बहुत प्रैक्टिस करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए। वो तो है, वो तो आप इन डेप्थ जाओगे डेटा स्ट्रक्चर्स में तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह भी बहुत कुछ है। लेकिन है सर। जिस तरीके से आपका सिलेबस डिजाइन किया हुआ है उस हिसाब से अभी तो, और फिर भी वो सेमेस्टर में है तो मैम लाइक चल रहा है, ठीक है? वो सारा तुषार, वो सारे थोड़े ना अलग सी टॉपिक है। आई एम मैम टॉपिक कंसर्न। का बात नहीं है, मैम टॉपिक का बात नहीं है मैम, ये जो चीज है ना बहुत, मगर अभी अगर ऑनलाइन क्लासेस में इतना इश्यू होता है, नेट नेट कनेक्टिविटी सब कुछ होता है, उसके बावजूद भी डेटा स्ट्रक्चर शुड बी लाइव सेशन, आई गेस। डेटा स्ट्रक्चर ऑनलाइन करके फायदा नहीं था, मैं तो पहले से मानना था, मगर वो केयर्स। ओके तुषार, यहाँ पे ना देखो, जिस तरीके से आई एम वॉचिंग थिंग्स, people not joining the session, okay, there can be two reasons mainly. Either अभी ऑनलाइन है तो either there are connectivity issues, whatever, XYZ जो भी है, डिवाइस रिलेटेड, नेटवर्क रिलेटेड, कुछ भी, जोग्राफिकल रीजंस, एनीथिंग, कनेक्टिविटी इश्यूज है, या तो फिर आप लोगों को मेरा समझ नहीं आ रहा है। नहीं मैम, समझ आ रहा है, पर क्या होता है अगर हमारा एक कंसेप्ट भी क्लियर नहीं है तो हमें लगता है कि हमें आगे का कुछ नहीं आएगा, तो इस रीजन से हम लोग कभी कभी छोड़ देते हैं क्लास। पर ऐसे नहीं होता ना बच्चे, आपको पूछना पड़ता है। क्योंकि देखो, ऐसा भी नहीं है कि मैं भगा रही हूँ क्लास में, करेक्ट? यस और नो? आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हम लोग फास्ट जा रहे हैं तो यू कैन नहीं टेल मी मैम, नाउ, आर वी गोइंग फास्ट? नहीं नहीं। This is for all, okay? This is, I'm not just talking with मैम Vidhi or Tushar. This is for even for Manthan, Girish, Manav, Devansh, for all of you. मैम Do आई you कैन think we are गारंटी going यू, very fast? मैम हाँ तुषार। मैम आई कैन गारंटी यू 90% ऑफ द क्लास को कुछ समझ में नहीं आया होगा, इतना हम लिख के दे देते हैं। इतना हम अपना क्लास को जानते हैं, इतना हम जानते हैं कि कितना टफ चीज़ है, कितना कॉम्प्लेक्स चीज़ है डेटा स्ट्रक्चर। 90% ऑफ द क्लास को नहीं आया होगा, और बाकी 10% में किसी को कुछ आया होगा, किसी को कुछ नहीं आया। वो तो अभी मुझे यूनिट टेस्ट में पता चलेगा फ्राइडे को मैम यूनिट टेस्ट में कुछ कि, नहीं होगा, मैम यूनिट टेस्ट में एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा, कॉन्सेप्ट कोड्स लिखने में जब आता है ना, तब मेन टेस्ट जब कोड्स लिखना होता तब होता है। हाँ मैम, तुषार थ्योरी आपको समझ आती है, कोड में ही प्रॉब्लम होता है क्योंकि इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट एक साथ मैम यूज कॉन्सेप्ट करने में होते हैं कौन ना। सा भी पाइथन में करो या ये करो, एसएलएल का तो इंग्लिश तो इंग्लिश ही रहेगा कहीं पे भी रहो। करेक्ट, और उसमें तो क्या है तुषार की, आई ऑल्सो अग्री कि सबका कोडिंग को लेके एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड डिफरेंट होगा, ठीक है? आज आप लोगों को कोडिंग इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है, तो यू आर इनटू द कोडिंग, यू ट्राई, इवन आपको एरर्स आती है तो भी आपको ऐसा नहीं होता है कि ओ एरर आ गई चलो छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? बट दिस इज नॉट द केस इन ईच एंड एवरी स्टूडेंट I'm और, still not comfortable in C.
हाँ, क्योंकि the things have affected. Okay, the way you were learning C, and then you went and adapted. मैम 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 स्टार्टिंग से क्लास 12 में मैम C++ पढ़ रहा है मैम, तो इशू तो हो गए। सी और C++ में थोड़ा डिफरेंस तो है ही। लेकिन कम ही है आप लोगों को सीपी सब्जेक्ट आता था ना? हाँ आया था, लेकिन क्या हुआ लिंक टूट गई ना। पाइथन में क्या है कि पूरे सेमेस्टर एक सही से लिंक रहे, उसमें टूट गए और कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, इसलिए प्रॉब्लम तो हो ही रहा है सबको थोड़ा बहुत। मैम पाइथन और रीडेबल लैंग्वेज है, कोई भी सब्जेक्ट है, इसमें थोड़ा ब्रैकेट्स इश्यूज होता है, सिंटैक्टिकल बहुत है। वो I can get that, and I कभी भी मेरे completely. को इशू नहीं है क्योंकि C++ भी सेम होता है, मुझे इशू नहीं है, मगर C++ इज काइंडली मोर रीडेबल। C++ काफी इजी लगता है हैंड्स ऑन में, मगर C नहीं होता। But I'm talking. See, we are going away from the topic which I am concerned. मेरा कंसर्न ये है कि लास्ट 2 लैब से आपकी बैच में बाकी के स्टूडेंट्स अटेंड क्यों नहीं कर रहे? और ये बात आई गेस सपोज आई माइट मैम वो समझने वाला प्रॉब्लम ही है, क्योंकि सेम प्रॉब्लम अभी पाइथन के लिए हुआ था। मैम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डजंट केयर अबाउट कि आप पढ़ा रहे क्या नहीं पढ़ा रहा, उनको खाली उनसे मतलब है कि पास होना है। वो स्टूडेंट लाइफ का जनरल एटीट्यूड रहेगा, तो ठीक है। व्हाट आई एम कंसर्न्ड इज कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि देखो लेक्चर के टाइम में भी मुझे आंसर्स मिलते हैं, ठीक है। I'm not saying that you guys are sitting very quietly or anything. I get answers even from those students who are currently not in this session. ओके, सो ऐसा तो है नहीं कि उनको समझ नहीं आ रहा। दैट इज व्हाट आई कैन डू द जजमेंट, बिकॉज अगर आंसर्स आ रहे हैं दैट मीन्स यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। प्रॉब्लम कहाँ है? द लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो वो चीज तो मैं यहाँ पे करवा सकती हूँ इन द लैब, प्रैक्टिस। क्योंकि देखो मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं भगा रही हूँ, आपके साथ ही मैं खुद आपको दिखा के मैंने पूरा ये कोड किया है, करेक्ट। ऐसा भी नहीं है कि मैंने तैयार कोड रख दिया। और ये चीज भी ऐसी भी नहीं है कि लिंक लिस्ट जब मैं पढ़ा रही थी तब मैंने ये कोड लाइन बाय लाइन मैंने आपको समझाया है। ये पूरा जो सिंगल लिंक लिस्ट अगर आपको याद है, वीडियोस भी देख सकते हो। मैम आप समझाया तो था मैम, याद है मैम, बट क्या हुआ कि अभी इतना कुछ एक साथ चल रहा है ना, इतना कुछ हो गया, कभी ये वर्कशॉप कभी वो वर्कशॉप, खुद का सेल्फ स्टडी, कोई अपना कुछ और डोमेन में फोकस कर रहा है मैम, नहीं होता, याद नहीं रहता इतना कुछ याद नहीं रहता है। 1 घंटा का लेक्चर में क्या याद रहेगा? तो वही तो आप लोगों को फिर से रिवाइज करने के लिए तो वीडियोस बन रहे हैं कि आप लोग कभी भी जाओ और वीडियो मैम फिर भी मेरे को कितना इश्यूज आता है अभी भी। मैम हम तो पूछ लेते हैं हमको प्रॉब्लम, फिर भी इश्यूज तो आते ही। अभी वो तुषार तो कम ऑन, उतना तो अभी कॉलेज में हो, स्कूल फीड तो स्कूल की तरह तो होगा नहीं, तो थोड़ा बहुत तो सेल्फ स्टडी आपकी ओर से भी तो होना चाहिए ना। रही बात प्रैक्टिस की, तो अगेन स्कूल में तो हाथ पकड़ के ABCD सिखा देते थे किंडरगार्टन में, यहाँ पे तो आप लोगों को ही करना है। आप लोग मुझे डाउट्स पूछ सकते हो, करेक्ट। यू कैन सेंड मी द डाउट्स ऑन ईमेल्स, और दूसरी क्लास के बच्चे कर भी रहे हैं। आई डू टेक BS इन अनदर क्लास आल्सो एंड दे आर क्वाइट। मैम स्टिल अगर ये चीज लाइव सेशन होता, ऑफलाइन होता तो फिर फार बेटर होता, चाहे एक सेम बाद ही होता है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आई डू अग्री कि लाइव सेशन में अगर आमने सामने बैठ के हम लोग मिल रहे हैं, मैं तुम लोगों को सिखा रही हूँ, तो इट विल बी क्वाइट अ डिफरेंट सिनेरियो। बट नाउ वी आर इन सम न्यू नॉर्मल, जो अभी चल रहा है ना, न्यू नॉर्मल है ये, तो इसको एक्सेप्ट कर लो अभी। मैम वो तो ठीक है मैम, जो सब्जेक्ट सबसे इंटीग्रल है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, इट शुड बी ऑफलाइन। मेरे हिसाब से तो ये था, इट शुड बी ऑफलाइन। इट शुड बी ऑफलाइन, लेकिन तुषार यहाँ पे पता नहीं है ना कि ऑफलाइन अब शुरू कब होगा। तो पढ़ाना तो है ही, वरना आगे के सेमेस्टर के लिए बेस कैसे बनेगा आप लोगों का?
मैम दैट डिपेंड्स ऑन ओपिनियन आई गेस। वो ठीक है, वो बात भी नहीं है, दैट इज नॉट द टॉपिक विच आई एम डिस्कसिंग हियर। मुझे तो ये देखना है कि दिस इज योर बी बैच, ए बैच। ए बैच। मुझे तो ये देखना है कि ए बैच होते हुए भी, बिकॉज आई एम अंडर इम्प्रेशन कि ए बैच के बच्चे क्लास के सबसे होशियार बच्चे होते हैं। नहीं मैम, अभी ऐसा नहीं है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड ही है सब। अच्छा, ओके, ठीक है। हमारे टाइम में ऐसा होता था, ए बैच, बी बैच, सी बैच, इट वेंट लाइक दैट। तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है कॉलेज छोड़े हुए, वो भी मैं बता दूं। तो ठीक है, फाइन, नो इश्यूज, आफ्टर ऑल इट इज योर चॉइस। बट एक चीज है, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट स्पीक अप, जैसे विधि पूछ लेते हैं, तुषार पूछ लेते हैं मुझसे, unless and until you don't speak up that what part you are not getting, or unless and until in general you are not asking for help, then nobody will come to know, not even your professor, not even any of the people, okay, that you are in need of help, you are stuck somewhere, and to get out, always, self work won't help. You need some direction. Even if you want to go for self learning, you need some direction. तो पूछोगे नहीं तो आप लोग खुद ही लॉस्ट हो। प्रॉब्लम बताओगे नहीं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोगों का ही लॉस है। प्रॉब्लम बताओगे तो शायद कुछ सॉल्यूशन आ जाए, मे बी कुछ ज्यादा ही अच्छा सॉल्यूशन आ जाए, ठीक है, लेकिन बताओगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। तो ये चीज स्पेशली ए बैच स्टूडेंट्स के बीच में अगर ये समझ आ जाए तो अच्छी बात है, वरना वो लोग ये पूरा प्रोग्राम आप देखो, इट इज 6 ऑपरेशंस टू बी डन, और ऐसा भी नहीं है कि ये 6 ऑपरेशंस हमने डिस्कस नहीं किए क्लास में। एल्गोरिदम के साथ उसकी मैकेनिज्म्स मैंने आपको यहाँ पे एक्सेल में भी एक्सप्लेन की है, ये वाली एक्सेल में, कि जहाँ पे हम अभी सर्कुलर लिंक लिस्ट देख रहे हैं, सिंगली लिंक लिस्ट विथ एक्सप्लेनेशन, एक एल्गोरिदम का दिया हुआ है, और वही चीज हम अब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ठीक है, देख लेना तुम लोग, अदरवाइज आई डू हैव टू हैव अ वर्ड विथ मधु मैडम ऑल्सो। फाइन, हो गया इतना, इतना तो हो जाना चाहिए। यस डिस्प्ले करवाया है किसी ने? मैंने तो नहीं करवाया, लेकिन अगर किसी ने थोड़ा एक्स्ट्रा जाके डिस्प्ले अगर करवाया हो तो डिस्प्ले करवाने के लिए ये कोड लिख सकते हो, क्योंकि अभी हमने डिस्प्ले फंक्शन नहीं बनाया और हमें देखना है कि हमारी सिंगली लिंक लिस्ट करेक्टली बनी है या नहीं बनी है। तो यू कैन जस्ट राइट दिस कोड, temp equal to head, okay, while temp of next is not null. What it has to do, it has to printf %d, okay, and what it has to print, your new node data part, okay, so new node data, okay. Abhi when you are using this temp of next not equal to 0, okay, oh yeah, one more thing, you have to move your temp also to temp of next, okay. अभी इसमें क्या होगा कि temp of next not equal to 0 बोला है, ठीक है। So first of all, again your temp, just have a look here at line 35. Your temp, again you are moving back to head, okay, so wherever the head is pointing at, यहाँ पे मैंने लिखा ना temp equal to head,
जो जहां पे भी टेम्प हेड पॉइंट कर रहा है वहां पे आपका टेम्प भी पॉइंट कर रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट इज टेम्प ऑफ नेक्स्ट? टेम्प ऑफ नेक्स्ट क्या है? मेमोरी एड्रेस, ठीक है, न्यू नोड का। तो वो 0 नहीं है, सो वो 100 है, सो 100 नॉट इक्वल टू 0, सो व्हाट इट नीड्स टू प्रिंट? द न्यू नोड डेटा। तो वो D1 को प्रिंट करेगा, ठीक है। उसके बाद उसको क्या करना है? उसको आगे जाना है, टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट। सो टेम्प पहले यहाँ पे था, ओके, अब वो आगे चला गया यहाँ पे, फिर से अभी वो चेक करेगा टेम्प ऑफ नेक्स्ट क्या वैल्यू है? 200, 200 नॉट इक्वल टू 0, तो इट इज ट्रू, तो वो अंदर जाएगा, क्या प्रिंट करेगा? D2, ओके। D2 प्रिंट करके वो टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, तो वापस से टेम्प आगे चला गया। अभी यहाँ पे देखो टेम्प ऑफ नेक्स्ट क्या है? 0 है, ठीक है। तो वो इस वाइल के बाहर आ जाएगा, क्योंकि 0 नॉट इक्वल टू 0 ये तो फॉल्स हो गया, तो वो बाहर आ जाएगा। लेकिन हमारा D3 अभी बाकी है, हमने D3 प्रिंट नहीं करवाया क्योंकि वो लूप के अंदर ही नहीं गया, हमने प्रिंटफ तो लूप के अंदर लिखा है। तो D3 के लिए, D3 को प्रिंट करवाने के लिए आपको व्हाइल के बाहर भी एक प्रिंटफ स्टेटमेंट सेम मेंशन करना होगा। ओ सॉरी, यहाँ पे न्यू नोड डेटा नहीं, टेम्प डेटा आएगा क्योंकि टेम्प पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आप बाहर लिख रहे हो, उसका मतलब क्या हुआ कि आप जो लास्ट नोड का जो डेटा है, लास्ट नोड डेटा टू बी प्रिंटेड, ओके, ये अलग से हम लोग क्यों लिख रहे हैं प्रिंटफ का स्टेटमेंट? क्योंकि आपका टेम्प ऑफ नेक्स्ट, जब टेम्प आपका लास्ट में आता है तो उसका नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 0 है, 0 नॉट इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो वो इस वाइल के अंदर गया ही नहीं और उसने ये प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं किया, तो ये लास्ट नोड का जो डेटा है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो प्रिंटफ ये वापस से हमने लिखा ताकि लास्ट नोड का डेटा हम प्रिंट कर पाए। Now see, let me run this code for you. Enter the data for the node. Okay, let us write 50. I would like to add more nodes. So yes, so 1. So see, 50 is getting printed. क्यों? क्योंकि मैंने उसके बाद ही सीधा ऐसे टेम्प ऑफ हेड इक्वल टू डिस्प्ले का मैंने कोड लिखा है। ये कोड आप यहाँ पे व्हाइल के बाहर भी लिख सकते हो। अगर आपको एक ही बार डिस्प्ले करवाना है, सब कुछ एक ही बार में डिस्प्ले करवाना है, तो ये आपके कोड का सिर्फ जो पोजीशन है, जगह है, वो चेंज कर दो, तो वो एट द एंड आपको सारा डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे वो नोड बाय नोड डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अभी फिर से मैंने नोड डाला, लेट्स से 60, आई वांट टू कंटिन्यू, यस, तो देखो 50 और 60 प्रिंट हुआ। वापस से 70, आई वांट टू कंटिन्यू, यस, तो देखो 50, 60, 70 प्रिंट हुआ, ठीक है। और वो इवन सही सीक्वेंस में भी है, 70 लास्ट में गया था तो 70 लास्ट नोड ही है मेरा, ठीक है। एंटर द नोड 80, वांट टू कंटिन्यू, 0, तो देखो 50, 60, 70, 80। स्पेसिंग के लिए आप यहाँ पे ऐसा है तो /p दे देना, ठीक है। टैब्स दे दोगे तो वो स्पेसिंग हो जाएगी। हो गया इतना सबका? फॉर ऑल ऑफ यू, मंथन, गिरीश और मानव, देवांश, इन चारों का तो मुझे कुछ रिप्लाई नहीं है। इन माय लास्ट डिस्कशन ऑल्सो, ये वाले में भी। देवांश हो गया? आपने क्रिएट फंक्शन कॉल करवाया था ना? ठीक है, कुछ एरर आ रही है उसमें? नो मैम। ओके, दिखाओ, वो अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है मेरे अप्रोच से। I'd like to see. शेयर करो अपनी स्क्रीन। मैम वो फंक्शन वाला हटा दिया क्योंकि फंक्शन में थोड़ी एरर आ रही थी, तो वो डायरेक्ट आपके जैसे ऊपर ही लिख दिया व्हाइल लूप के अंदर।
नहीं समझ आया, वापस बोलो। मैम वो जो मैंने अलग से फंक्शन बनाया था ना क्रिएट का, हाँ हाँ उसमें थोड़ी सी एरर आई थी तो मैंने ऊपर ही डिक्लेयर कर दिया, वो ग्लोबली डिक्लेयर नहीं था इसलिए। हाँ, कोई बात नहीं, चलता है। ओके मैम। दिखाओ अपना कोड। सही किया है, जाओ नीचे। ओके, फिर मेरे जैसा ही लिख दिया ऐसा, क्रिएट बनाया ही नहीं। यस मैम। हाँ, मेरे जैसा किया है तो मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा कोड तो चल रहा है, तो आप में भी चल ही जाएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू देवांश। स्टॉप प्रेजेंटिंग। तुषार, क्या एरर आ रही है बताओ। मैम शायद ब्रैकेट्स में हम ब्रैकेट चेक किया तो मुझे शेयर बहुत करो, प्रॉब्लम आ रहा है। स्क्रीन शेयर करो। ओके मैम। गिरीश, मैं आपकी स्क्रीन भी देख लूंगी एक बार, मैं तुषार का डाउट सॉल्व कर लेता हूँ। ब्रैकेट की गड़बड़ की है। मैम 68.2 में लिखा रहा है। लाइन नंबर 66 का ब्रैकेट है ना, उसको कमेंट कर दो। ऊपर जाओ, थोड़ा सा, बहुत नहीं, थोड़ा सा। और नीचे। लाइन नंबर 39 का ब्रैकेट स्लैश कमेंट करो। देखो तुषार, दिक्कत क्या है पता है, थोड़ा सा आपकी है ना कोडिंग स्टाइल ऊपर नीचे वाली सही की है। 41, लाइन नंबर 41 से सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके जो ऊपर आपने ये प्रिंट एफ, स्कैन एफ, टेम्प सारा जो सब कुछ दिया है, ओके, वो अगर आप वाइल के अंदर लिख रहे हो ना, तो टैब दे के लिखा करो, ताकि पता चले कि वो सारी चीज है ना वाइल के अंदर है। वाइल के साथ साथ टैब में मत रखो। जैसे कैसे आपने स्ट्रक नोड, न्यू नोड को एक टैब दिया है, तो वो आराम से पता चल गया कि वो वाइल के अंदर है। उसके बाद जो न्यू नोड, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, वापस से न्यू नोड, नेक्स्ट, उसमें टैब भूल गए देना।
तो वो सारी चीज है ना टैब में दे के रखा करो ताकि पता चले कि वो वाइल के अंदर सब कुछ चल रहा है, तो आराम से पता चल जाए कि वाइल कहाँ खत्म हो रहा है। ठीक है, रन ओके करके मैम। रन करके देखो एक बार, एरर आ रही है अभी भी? अभी भी कहीं पे गलत किया है। टैब देना शुरू कर दो, लाइन नंबर 17 से टैब देना शुरू करो। मैम कॉपी पेस्ट करके वो करता है। क्या क्या समझ नहीं आया? मैम वही टैब दे रहा है। ओके, गिरीश अपनी स्क्रीन शेयर करो। मंथन और मानव, मानव हो रहा है क्या या नहीं हो रहा है? ठीक है, स्टूडेंट्स डन। आई होप एरर सॉल्व हो गई होगी। विपिन चले गए, ठीक है। तुषार हो गया, एरर सॉल्व हुई या नहीं हुई? मैम वही टैब देख रहा और ब्रैकेट चेक कर रहा कहाँ पे प्रॉब्लम है। हो गया। मैच कर रहा है मैम, मैं वही मैच कर रहा है मैम, शायद तक लॉन्ग एक्सपेंड। और देखो सी लैंग्वेज में मल्टी लाइन कमेंट भी आता है, हर लाइन पे जाके डबल स्लैश करना जरूरी नहीं है। फॉरवर्ड फॉरवर्ड स्लैश और स्टार वो स्टार्टिंग में डाल दो, और जहां पे कमेंट खत्म करनी है, जिस पार्ट पे जाके खत्म करनी है वहां पे स्टार और फॉरवर्ड स्लैश उतना कर दोगे तो उन दोनों के बीच में जो जितना भी कोड होगा वो पूरा कमेंट हो जाएगा। हर लाइन पे जाके डबल स्लैश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके मैम। See students, now we are moving forward. Okay. Actually, I guess दो शायद कर पाए, तीन ना कर पाए, दो फंक्शंस शायद कर पाए। अभी देखो, आई एम प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन, एवरीबॉडी अटेंशन हियर। मंथन, मैं आपसे पूछना भूल गई, हो गया या बाकी है? मंथन, સેશન માં જ નથી મંથન, કે ખાલી એમ જ જોઈન કર્યું છે? થાય છે પ્રોગ્રામ કે નથી થતું?
આ નો મેમ શેનું છે? થાય છે. ઓકે, હું જોઈશ. આ એક કરી લ્યો, ઇન્સર્ટ એટ ધ બિગિનિંગ. પછી હું જોઉં છું તારું, કેમ કે તારું બાકી રહી ગયું છે. તારું નામ લેવા જતી હતી ત્યાર સુધીમાં તારું નેટવર્કના ઇશ્યુઝ ના લીધે તું ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયો. બટ તારું જોવાનું બાકી રહી ગયું છે, તો હું જોઈશ. But સારું, ચલો. Okay, students, now see, you are successfully creating the linked list. Okay, now we are going on the third part of our program flow, that is give the options for operations. Okay, now when I tell you that give options for the operations, no need for sorry, it's okay. Give options for operations when I tell you. Okay, then what you have to do is, when options come into the picture, okay, automatically there will be one switch case. Okay, because that is the switch case. Sorry, that is the you can say the statement, the switch statement, or say the loop where you are going to go for the options. Okay, and what is the mechanism that I want to keep? क्या मैकेनिज्म रखनी है कि मेरा यूजर जितनी बार चाहे उतनी बार वो लूप चले. तो ऑब्वियस है कि मुझे वो पूरा का पूरा कोड एक लूप के अंदर रखना पड़ेगा. ठीक है, तो इस वजह से वी आर टेकिंग वन व्हाइल लूप विच यू मस्ट हैव कोडेड. ठीक है, यहाँ पे अगर आ जाते हैं हम लोग वापस से, तो ठीक है, मैं अपना ये मल्टी लाइन कमेंट, तो शायद देखो ऐसे होता है, / एंड स्टार. ठीक है, जितना भी कोड उसके बीच में है, got it. और यहाँ पे स्टार और /. ठीक है, अभी मुझे ये यहाँ से हटा के ठीक है, मुझे यहाँ पे भी चाहिए होगा. ठीक है, देखो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, एक व्हाइल लूप ली. क्यों ली है ये व्हाइल लूप? so that user can run as many times as he or she likes. ओके, व्हाइल लूप के अंदर हर बार आप उसको पूछोगे कि आपको कौन से ऑप्शंस, ये सारे आपके पास ऑप्शंस है, कौन सा वाला ऑप्शन आपको करना है ऑपरेट. ठीक है, सो एंटर द चॉइस ऑफ ऑपरेशन. तो वो आपने स्कैनफ में फेच करवा लिया. वो चॉइस है वो आप यहाँ पे स्विच केस में पास कर रहे हो, राइट. तो अपना हमारा केस नंबर 1 सबसे पहले वो देखते हैं, इंसर्ट एट द बिगिनिंग. नाउ you have to, you know, sometimes due to the compilers it might give you an error. okay, insert at the beginning के लिए यहाँ पे आप एक बार ग्लोबली उसको डिक्लेयर कर दो. ठीक है, हमारा void टाइप का वो यूजर डिफाइंड फंक्शन है insert at the beginning. ठीक है, वरना वो टाइप डेफ की कंपाइलर कभी कभी एरर्स दे देता है. ठीक है, अभी उसका इंसर्ट एट द बिगिनिंग का कोड हम लिखने जाएंगे. सो ये मेरा हो गया, ये एंड ऑफ मेन है मेरा. ठीक है, देखो यहाँ पे ये मेन का ब्रैकेट हाईलाइटेड होगा. फाइन, उसके बाहर मैं अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखने वाली हूँ. फाइन, यहाँ पे लिख सकती हूँ void insert at beginning. ठीक है, now see here I am inserting one full node. all right, so either you can write code here again to create the memory allocation for the code, sorry, for the node, not code, my mistake, for the node. okay, या तो फिर अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप इस स्विच केस से पहले एक नोड बना सकते हो यहाँ पे. ठीक है,
और उस यहाँ पे आपने क्रिएट कर दिया यहाँ पे ऐसे न्यू नोड, सेम जो आप नोड बनाने के लिए कोड लिख रहे हो वही सेम वाला, स्ट्रक्ट नोड स्टार। गिरीश आई गेस आपने कुछ पेस्ट किया है, मैं ये कंप्लीट करने के बाद देख लूंगी उसको। साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा न्यू नोड की मेमोरी एलोकेट हो गई, कुछ डेटा पार्ट आपने यहाँ पे उसका दे दिया और पॉइंटर पार्ट दे दिया, और इस न्यू नोड को आपने एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। एज पैरामीटर आपने पास कर दिया, ये एक तरीका है, दिस इज वन वे। इफ यू डोंट वांट टू डू इट लाइक दिस, देन ऑल्सो जस्ट कॉल योर यूजर डिफाइंड फंक्शन। दिस इज योर यूजर डिफाइंड फंक्शन, आई एम मेंशनिंग इट एज यूडीएफ। ओके, ये लाइन आप यहां से हटा के ऊपर यहाँ पे फंक्शन के बिगिनिंग में लिख दो, ठीक है। फाइन, नाउ टेक द डेटा, printf, enter the data for the new node to be inserted, ताकि पता चले कि हम एग्जैक्टली किस नोड के लिए डेटा ले रहे हैं, ठीक है। हर जगह पे एंटर डेटा डालोगे तो आप ही कंफ्यूज हो जाओगे कि एग्जैक्टली किस नोड के लिए डेटा जा रहा है। स्कैनर %d एम्परसेंड न्यू नोड डेटा, ओके। और उसका न्यू नोड नेक्स्ट हम फिलहाल 0 दे रहे हैं, ठीक है। नाउ सी व्हाट इज द मैकेनिज्म, इंसर्ट एट द बिगिनिंग, ठीक है। तो अगर उसका हम एल्गोरिथम देखने जाए, आई विल कंपेयर विद द एल्गोरिथम और आपको मैं कोडिंग दिखाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। So what you guys need to do is you guys kindly try to visualize, okay। जैसे एक्सेल फॉर्मेट में मैंने आपको नोट्स वगैरह दिखाए थे, तो उसकी तरह पे विजुअलाइज करना, थोड़ा एफर्ट करना अपनी ओर से। सर्कुलर, ओके, ये आपका एल्गोरिथम था, इंसर्ट अ नोड एट द बिगिनिंग, ठीक है। ये मैंने अगेन आई एम सेइंग क्लास में हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको डिस्कस किया है। सो यू जस्ट हैव टू यू नो ट्राई एंड विजुअलाइज कि अब ये कैसे हो रहा है। सी आई टोल्ड यू दैट स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3 वो सारा ये एक लाइन पूरा हैंडल कर रही है, ठीक है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है उसमें। हाँ, अगर आप सही में उसको देखना चाहते हो, दैट इफ अवेल इज इक्वल टू नल राइट ओवरफ्लो, दैट मीन्स इस मैलॉक ने इस न्यू नोड को कुछ वैल्यू दी है या नहीं दी है, अगर वो आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इफ न्यू नोड इज नॉट इक्वल टू 0। देखो ये न्यू नोड में क्या आएगा, एक मेमोरी एड्रेस आएगी, ठीक है। अ मेमोरी एड्रेस विच इज फ्री इनसाइड योर यू नो द मेमोरी ब्लॉक पूरा। अगर वो नल वैल्यू नहीं है या तो इट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो ही आप आगे बढ़ोगे इस इंसर्ट एट द बिगिनिंग फंक्शन में, तो ही आप आगे बढ़ोगे अगर न्यू नोड नॉट इक्वल टू 0 है तो। अगर वो इक्वल टू बाय एनी चांसेस मेरी मेमोरी फुल है, ठीक है, और वो न्यू नोड को कुछ भी मेमोरी एड्रेस असाइन नहीं कर रहा,
तो else just write one simple printf statement, memory full, ठीक है। वैसे ये हमारे पीसीज में रेयरली ये प्रिंट होगा, क्यों? क्योंकि हमारे में इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस नहीं होते, ठीक है। बट इट इज अ गुड प्रैक्टिस, अगर आप ये आदत रखते हो तो क्या हो गया, देखो, इफ अवेल इज इक्वल्स टू नल, दैट मीन्स न्यू नोड को मेमोरी मिली 0, तो वो प्रिंट क्या करेगा, मेमोरी फुल, ठीक है। लेकिन अगर उसको 0 मेमोरी नहीं मिल रही, न्यू नोड को मेमोरी कुछ मिल रही है अपार्ट फ्रॉम 0, देन व्हाट यू हैव टू डू, टेक द डेटा पार्ट। तो हमने देखो यहाँ पे डेटा पार्ट ले लिया, ठीक है। न्यू नोड नेक्स्ट जो हमने अभी 0 लिया है, उसको अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम क्या देना है, वैल्यू स्टार्ट। क्यों स्टार्ट? क्योंकि ये वाला जो नोड है, न्यू नोड है, उसको हमें आगे रखना है। वी हैव टू कीप दिस न्यू नोड एट द वेरी फ्रंट ऑफ माय एग्जिस्टिंग सिंगली लिंक्ड लिस्ट, ओके। सो आई एम गोइंग टू गिव द वैल्यू ऑफ माय हेड हियर, ओके। सो न्यू नोड नेक्स्ट equal to head. Then what my algorithm says, I need to point my head to this new node now. Why? Because we are going to insert this new node at the very beginning, and according to single linked list property, head should point to the first node. तो ये new node वैसे भी हमारा first node होगा अभी, right? So that's why we are updating the position of head also. So head is equals to new node. For explanation, you can write here, head is going now to point at newly inserted first node, okay, ठीक है। this much only you have to write for new node to be inserted at the beginning. Mandhan, I received your photos for the code. I'll just have a look once I finish with this, okay? अभी देखो, हमें प्रोग्राम चलाने के लिए मैंने अभी इंसर्ट एट द एंड, असेंडिंग ऑर्डर और ये डिस्प्ले फंक्शन अभी मैंने नहीं कोड किया, तो I'll just comment that. In fact, I can do one thing for display, star divide, okay. For display I can just write that code. जो कोड आपने सिंगली लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए लिखा था, वो सेम चीज आप यहाँ पे लिख लो, कॉपी पेस्ट, डिस्प्ले, ओके। सो यहाँ से आप हटा के, कहाँ गया ये रहा, टू डिस्प्ले एसएलएल है ना, ये पूरा का पूरा कोड यहाँ से आप हटा सकते हो, ठीक है। इंस्टेड वहां पे ये डिस्प्ले कॉल करवा दो, यूजर डिफाइंड फंक्शन है वो आप कॉल करवा दो, ठीक है। और इस डिस्प्ले के बीच में वो पूरा कोड लिख दो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। तो आपका वो डिस्प्ले चल जाएगा। और यहाँ पे हाँ, एंड डोंट फॉरगेट टू राइट ब्रेक स्टेटमेंट, जो कि मैं यहाँ पे मिस किया था, ठीक है। सो इट शुड रन इंसर्ट एट द बिगिनिंग, ठीक है। देखते हैं, चलो, नहीं, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक। देखो, पहले तो वो मुझे अपनी एसएलएल क्रिएट करने के लिए बोलेगा, ठीक है, मेरा प्रोग्राम। सो आई एम गोइंग एंड क्रिएटिंग एन एसएलएल 50, yes, enter the node 60, yes, enter the node 70, yes, let's say no for now। तीन नोड ही मेरी एसएलएल है, ठीक है। अभी देखो 50, 60, 70, फाइन। अभी मेरा इंसर्ट एट द बिगिनिंग वो भी चल रहा है, ठीक है। तो 1, it is going to ask me enter the data for new node to be inserted, let's say 80, want to continue, yes। फिर से वो मुझे ऑप्शंस देगा, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग फॉर ऑप्शन नंबर 4, दैट इज डिस्प्ले।
80 50 60 70, एक मिनट 80, हाँ क्यों आगे आया, क्योंकि इंसर्ट एट द बिंग है, ठीक है, तो इट इज गिविंग मी द राइट आउटपुट। 80 आगे, इंसर्ट एट द बिगिनिंग आगे प्लेस हो गया। एनी डाउट हियर एनीबडी? समझ आया कैसे हो रहा है कोडिंग? स्टूडेंट्स कुछ भी डाउट है यहाँ पे किसी को भी? विधि का तो नो आ गया, तो आई कैन वाउच फॉर विधि कि उसको समझ में आ गया। बाकी के लोग आई होप आप लोगों को पता चल रहा है, अब तो आपको पता चलना चाहिए। एक विधि का ही मेरे को नो मैम आया है, बाकी के लोगों का क्या है, म्यूट ही है कि मेरे को पकड़ पकड़ करके अभी आप लोगों को बोलना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, व्हाट इज हैपनिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, सी जैसे इंसर्ट एट द बिगिनिंग का किया, ओके, इन अ सिमिलर मैनर वी आर गोइंग टू गो फॉर इंसर्ट एट द एंड ऑल्सो, ओके। सो यहाँ से इसको हटा के मैं केस 3 के पास रख दूंगी फिलहाल, फाइन। सो इंसर्ट एट द एंड, अभी देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ की थी, सिमिलर वे, जैसे यहाँ पे आपने इंसर्ट एट द बिगिनिंग लिखा है, ठीक है, वैसे ही आप इंसर्ट एट द एंड करोगे। टू अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक यू कैन कॉपी पेस्ट योर फंक्शन नेम फ्रॉम योर केस 2, ओके। यहाँ पे आपका इंसर्ट एट द बिगिनिंग है, ठीक है, उसके नीचे आपका एक डिस्प्ले का फंक्शन है, तो डिस्प्ले फंक्शन के बाद आप कहीं पे भी वॉइड मेन के बाहर आप लिख सकते हो। सो वॉइड insert at end, again copy paste this lines of code, create memory allocation, okay, if new node not equal to 0, ये पूरा if else का कोड आप कॉपी कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी आप वो सेम चीज करोगे, एक न्यू नोड बनाओगे, उस न्यू नोड को आपको एंड में रखना है, ठीक है।
बाकी सारी चीजें सेम ही रहेगी, कुछ बदलेगा नहीं, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। न्यू नोड एक क्रिएट कर लिया, ठीक है, उसको मेमोरी एलोकेशन दे दी, उसके बाद आप चेक कर रहे हो उसको मेमोरी एलोकेशन मिली तो आगे जाओ फंक्शन में, अगर नहीं मिली है तो प्रिंट एफ मेमोरी फुल, ठीक है। ओके, फंक्शन में आगे जाने के लिए सबसे पहले तो हमें डेटा चाहिए, सो यू आर गोइंग टू आस्क दैट एंटर द डेटा फॉर द न्यू नोड टू बी इंसर्टेड, हियर यू कैन मेंशन एट द एंड, ओके, जस्ट टू डिफरेंशिएट कि कौन किस नोड के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। और न्यू नोड नेक्स्ट इक्वल टू 0 दे दिया। नाउ सी हैव अ लुक एट द एल्गोरिथम नाउ, ठीक है, इसका एल्गोरिथम भी हमने डिस्कस किया था अगेन। Your screen is not visible. माय स्क्रीन इज नॉट विजिबल। No, maybe you are not presenting it or. अरे यार, तुम लोग बताते क्यों नहीं हो? तो अभी तक मैंने जो भी बोला वो सिर्फ सुना है आप लोगों ने, ऐसा है? हाँ. ग्रेट स्टूडेंट्स, ग्रेट। बोलते क्यों नहीं हो? मैम हमें लगा आप सिर्फ समझा रहे हो. Oh God, no students. This is a practical lab. ठीक है, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, सेकंड केस 2 के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, इंसर्ट एट द एंड, फाइन, उसके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन कॉपी पेस्ट द नेम सो दैट यू डोंट गेट एरर्स विद द नेम। सो यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, और जैसे इंसर्ट एट द बिगिनिंग यूडीएफ फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन हमने बनाया है, वैसे ही आप अब इंसर्ट एट द एंड का फंक्शन बनाने जा रहे हो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मेन के बाहर ऊपर या नीचे योर चॉइस, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर बना रही हूँ तो आप लोग को कंपल्सरीली ऊपर ही बनाना है, आप नीचे बनाओगे तो भी प्रोग्राम चलेगा, लेकिन मेन के बाहर ये चीज इंपॉर्टेंट है, मेन के अंदर नहीं, मेन के बाहर, ठीक है। अभी देखो इंसर्ट एट द एंड, ठीक है, और उसमें क्या करोगे कि जो आपने कोड इंसर्ट एट द बिगिनिंग में लगाया है, यहाँ पे जो आपने अभी पूरा जो लिखा वो सेम चीज आपको कॉपी पेस्ट करनी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी आप एक इंसर्ट न्यू नोड बना रहे हो, ठीक है, तो वो चीज तो सेम ही रहेगी। अगेन यू आर चेकिंग कि उसको कुछ मेमोरी एड्रेस मिली है या नहीं, अगर नहीं मिली है तो प्रिंट एफ मेमोरी फुल, ओके, और अगर मिल गई है तो ही फंक्शन में आगे बढ़ो, फाइन। तो ये पूरा का पूरा जो कोड है जो कि आपने इंसर्ट एट द बिगिनिंग में लिखा था, ओके, दैट यू हैव टू कॉपी पेस्ट एंड राइट नाउ पेस्ट इट इनसाइड योर इंसर्ट एट द एंड, ओके। सो नाउ सी द चेंजेस, व्हाट यू हैव टू डू, आपने डेटा पार्ट ले लिया, नेक्स्ट पार्ट को आप 0 दे दोगे, ठीक है। नाउ सी ये सेम स्टेप्स मैंने आपको बोला था कि दैट इज गोइंग टू बी दिस 1 2 3 आर गोइंग टू बी द सेम स्टेप्स इन ईच एंड एवरी इंसर्ट फंक्शंस, ओके। सो इस बार यहाँ पे एल्गोरिथम की साइड ध्यान दो, 1 2 3 हमने स्टेप्स लगाए हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ मेमोरी एलोकेशन व्हिच यू आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ malloc। देन व्हाट इट सेज, न्यू नोड डेटा सम वैल्यू, तो यहाँ पे प्रिंट ऑफ और स्कैनफ की स्टेटमेंट से हमने वैल्यू ले ली और उसको हमने न्यू नोड डेटा में स्टोर करवा दी, ठीक है। अभी इंसर्ट एट द एंड की मैकेनिज्म देखो, स्टेप नंबर 5 क्या बोल रहा है, न्यू नोड नेक्स्ट इक्वल टू नल, तो न्यू नोड नेक्स्ट यहाँ पे कोडिंग में देखते जाना साथ में, न्यू नोड नेक्स्ट इक्वल टू नल है तो यहाँ पे कोडिंग में क्या किया, न्यू नोड नेक्स्ट इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ वी हैव टू ट्रैवर्स, क्यों ट्रैवर्सन, क्योंकि इस न्यू नोड को हमें एट द एंड लास्ट में हमको प्लेस करवाना है, ठीक है। So first of all you are going to take one temporary pointer, so temp equal to head, why, for traversing
to reach the end of SLL. ठीक है, so temp is equals to head. Now what step number 7 says? Repeat while PTR of next not equal to null. ठीक है, तो यहाँ पे एक while लूप जाएगी, while temp, यहाँ पे जो PTR एल्गोरिथम है वो हमारा temp है, so temp of next, ओके, इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जब तक कि मैं लास्ट नोड तक ना पहुंच जाऊं तब तक मुझे क्या करना है? आई नीड टू मूव माई PTR. ओके, सो temp इक्वल टू temp of next. हो गया. Now once it reaches the last node, ये लूप बंद हो जाएगी एग्जीक्यूट करना. ठीक है, वो बाहर आ जाएगा क्योंकि टेम्प अभी कहां पे है? लास्ट नोड पे. और उसको कैसे पता चला कि वो लास्ट नोड पे? क्योंकि उसका टेम्प ऑफ नेक्स्ट जो कि 0 है, इट इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये पूरी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई. ओके, इसीलिए वो बाहर आ गया. अभी बाहर आकर उसको क्या करना है? जहां कहीं पे भी टेम्प है, ओके, जहां कहीं पे भी टेम्प है उसके नेक्स्ट पार्ट को, आपका टेम्प कहां पे है? लास्ट नोड पे, राइट. हमारा एम क्या है कि हमने जो न्यू नोड बनाया है उसको लास्ट में रखना है. तो ऑब्वियस है कि जहां पे टेम्प अभी जिस लास्ट नोड पे है उसका टेम्प ऑफ नेक्स्ट ये न्यू नोड को पॉइंट करना चाहिए, करेक्ट. सो उस नल वैल्यू को हम अपडेट करके इस न्यू नोड की वैल्यू के साथ रिप्लेस करेंगे. सो टेम्प ऑफ नेक्स्ट विच वाज आइडियली नल वैल्यू. Why? Because it was initially your last node. Now it is no more going to be your last node. So we are assigning the value of new node. Why? Because this new node is going to be my last node now. Okay? And you are going to exit from the function. ठीक है, ये खत्म हो गया आपका यहाँ पे फंक्शन पूरा. ऑलराइट, सी फिर से एक बार बताती हूँ. You are going to create a memory allocation for new node. ठीक है, अगर उसको मेमोरी एलोकेट हुई है तो ही आगे बढ़ो फंक्शन में. अदरवाइज जस्ट टेल द यूजर दैट योर मेमोरी इज फुल, ओके, एंड नो मोर प्रोसीडिंग विद द फंक्शन. ओके, इफ यू आर प्रोसीडिंग विद द फंक्शन, इफ मेमोरी गॉट एलोकेटेड तो उसका डेटा दे दो न्यू नोड का. ठीक है, उसके नेक्स्ट पॉइंटर पार्ट को 0 दे दो. Why we are assigning it to 0? Because we know that this new node is going to be the last node. So obviously that next part is going to be 0, satisfying the property of my singly linked list. ठीक है. Now I have to place this new node and I cannot move my head. So with the help of my temporary variable I will traverse. Okay, traversal के लिए क्या हमने यूज किया है? while loop. And what is the condition for the while loop? Until the temp does not come to a next part which is not equal to 0. जब तक कि आपका temp of next की वैल्यू 0 नहीं है तब तक temp को आगे बढ़ते रहना है. So temp of next not equal to 0. If it is true, then temp has to move forward. So एक जब वो last node पे आएगा, when temp is pointing at last node and again this while loop is running, so obviously it is going to get temp of next value as 0. 0 not equal to 0 is false, so while loop is not going to execute. So we came to know that temp has reached the last node. अब उस last node की जगह पे that last node we have to make it as last second node. ठीक है, तभी जाके हमारा न्यू नोड लास्ट नोड बनेगा. तो उसको हमने पॉइंट करवा दिया, उसका जो नेक्स्ट था जो कि इनिशियली 0 था उसकी वैल्यू हमने अपडेट कर दी न्यू नोड की मेमोरी एड्रेस के साथ. ठीक है, और न्यू नोड की नेक्स्ट तो ऑलरेडी हमने 0 मेंशन कर ही दी है, तो वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग विद न्यू नोड नेक्स्ट 0. ओके, सो दैट एंड्स योर फंक्शन. लेट्स सी.
See, and first of all, again, it will prompt me to ask my singly linked list. Okay, so 50, 60, 70. Okay, now insert at the beginning. पहले आपको वो भी दिखा देती हूँ साथ में. So beginning में let's say I'm inserting 20. Okay, want to continue? Yes. Again, insert at the end. Okay, number 2. Insert the data for new node to be inserted at the end. Okay, let's say 18. Want to continue? Yes. अभी उसको डिस्प्ले करवा के देख लेते हैं सही किया है या नहीं. तो देखो 20 I did at beginning, so it is placed at the beginning. 80 I went and inserted at the end, so 80 is at end. Okay, ठीक है. You guys got it or not? Yes or no? Yes, ma'am. And students, please save this program, okay, somewhere. Do not lose this program, otherwise next lab में बहुत काम बढ़ जाएगा. ये पूरा कोड करना पड़ेगा. और अभी से ही देख लो कितने लाइंस का कोड है. It is already 137 line of code, and still we are, we have just covered 2 operations. We are yet to go for another 4 operations. ठीक है? Clear? Yes or no? Rest of the students. Again, I am saying, do not lose this program. Keep it with you somewhere safe. Okay, save कर लो कहीं पे भी. ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहे हो तो कॉपी करके एक नोटपैड में रख दो साइड पे कहीं पे. ठीक है? We are going to keep it till here. मैम, हाँ, नेक्स्ट लैब में सर्कुलर क्यू का डिस्प्ले करवा देना, वो छूट गया है हमारा. ठीक है. और कुछ छूटा है इससे पहले का, या तो आप लोगों को ऐसा कुछ चाहिए कि कुछ एक एक्स्ट्रा सेशन हो जाए प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिकल का. यू वांट एनीथिंग लाइक दैट? नहीं, दूसरे किसी में तो प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ तक ही. और हाँ, इफ पॉसिबल आप कुछ पॉइंटर और स्ट्रक्चर के लिए कुछ भी मटेरियल हो जिससे हम कंसेप्ट लाइक क्लियर कर सके, तो आप सजेस्ट करो ना. रुको 1 मिनट. एक पहले काम करो. राइट योर नंबर्स इन द चैट फॉर अटेंडेंस. राइट योर नंबर्स इन द चैट. Done? Everybody? Okay. Thank you all for attending the session.